Today's video is actually going to be really interesting because this is a story time video, guys. Hi, guys, welcome back to my channel. In case you don't know me, I'm Sanghita. Before we start this video, do not forget to like, comment, share, and subscribe my channel because come on, man, I need your love and support, please. From the thumbnail, you already know what this video is going to be about, but let me explain it again. So, this is about this one infamous person who lives in our locality, and उसके बेटे को मैं पढ़ाती हूँ, इंग्लिश पढ़ाती हूँ, एंड वो बेटा इज़ इन क्लास 10. Okay, so this uncle is actually infamous for like a lot of reasons. Two of them being, first, he has theft charges, guys. Okay, and second, he abuses his wife, and he abused his wife so much the previous year कि she committed, she's alive though, but still she tried to commit this, and not even, lying at this point, because जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनके ना, वो इनसे भाग के आए थे हमारे पास कि यार नहीं खुल रहा है दरवाज़ा, कुछ तो करो, हमसे नहीं खुला जा रहा है. तो माई फादर एंड लाइक अदर मैन फ्रॉम आवर लोकेलिटी ऑल्सो वेंट टू देयर हाउस टू लाइक ब्रेक इन टू देयर रूम टू रेस्क्यू दैट वुमन. And then it was like all okay after that, I guess. I don't know, but yeah, this is the history of the man that I'm talking about. So let's start from the very beginning, okay? So I, other than being a BTech student, is also a part-time private tutor. So I provide coaching classes to almost every class के student, and I was returning पढ़ा के ही किसी दूसरे बच्चे को when I meet this very sweet grandma, and she's also from our locality, and we were like hello hi. The grandma was like इतनी बड़ी हो गई हो, पढ़ा रही हो, इतनी सुंदर हो गई हो, and I was like okay, thank you. So we were speaking to each other रास्ते पे, and she was asking me तुम पढ़ाती हो, क्या पढ़ाती हो, तुम पढ़ा के return कर रही हो क्या? So I was like yeah, I am returning from there only. And while we were discussing this, that infamous uncle हमारे पास से गुजर रहे थे, वो हमारे बातें सुन के he suddenly goes like oh तुम्हें ट्यूशन पढ़ाओ, मतलब ओ तुम ट्यूशन पढ़ाती हो. So I go like, yeah, I like provide tuition classes to every student. So he's like, oh, that's really nice. So can you provide classes for my son as well? He's a class 10 student and I'm looking for a English tutor. So can you teach him? And me being a dumbass, I'm like, yeah, sure, of course, why not? एंड देन वो सुन के ही इज़ लाइक ओके देन लेट्स एक्सचेंज नंबर्स. तो शाम को मैं तुम्हें कॉल करके फ़ीस टाइम वगैरह सब जान लूँगा, तो यू कैन स्टार्ट योर क्लासेस फ्रॉम द नेक्स्ट वीक देन. एंड आई वाज लाइक ओके फाइन. तो मैं वो बोल के ग्रैंड माँ को बाई बोल के मैं चली जाती हूँ अपने घर. एंड लेट मी टेल यू गाइज, इट वॉज अप्रैल का एंड. सो शाम को वो कॉल बैक करते हैं एंड ही इज़ लाइक फ़ीस वगैरह सब ठीक कर लेते हैं वो, एंड आई वाज आल्सो ओके विद द फीस व्हाट दे वर गिविंग मी. एंड सो आई लाइक ओके तो मैं नेक्स्ट वीक से आऊँगी. एंड ही इज़ लाइक रुको रुको, देखो मंथ तो अभी एंड होने ही वाला है और एक वीक ही बचा है. तुम एक काम करो, तुम नेक्स्ट मंथ से आओ, नेक्स्ट मंथ के एकदम पहले दिन से आओ, तब से मैं तुम्हें फ़ीस देना स्टार्ट कर दूँगा फिर, और तुम ही पढ़ा सकती हो बेटर. आई एम लाइक ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम. एंड ही इज़ लाइक तो मैं ना एकदम लास्ट तारीख को, इस मंथ के लास्ट तारीख को तुम्हें कॉल करके एकदम फाइनल बता दूंगा कि तुम्हें कब से आना है, और नहीं आना है तो तुम तब से चले आना. एंड आई एम लाइक अगेन fine, okay. And days go by and I'm like casual, okay, from the next month they will join the classes, the last day they will call me to finalize everything. I was all ready for it. The last day comes, I was not getting the call. I'm like, okay, maybe they have forgotten to call me. Let me call them. So I call that uncle. Okay. And to my surprise, ये एक बार रिंग होके ऑटोमेटिकली कट हो जाता है. तो आई ट्राई अगेन एंड द सेम थिंग हैपन्स अगेन. एक बार रिंग होके ऑटोमेटिकली कट. ओके. तो आई एम लाइक भैया ये क्या हो रहा है भाई, मतलब आई एम स्मेलिंग समथिंग फिशी हियर. So what I do is I take my mom's phone, I dial the number, I call that, and guess what? It was ringing normally. So now I know भैया मेरे साथ तो हो गया है scam. This person has blocked my number, and which was fine. It's okay. He's not my boyfriend that I'll get hurt if he blocks my number or something. But the thing is, if you don't need like my tuition classes, why you took my number? Why you blocked it? Block क्यों कर रहे हो भाई? सीधा बोल दो ना मुँह पे कि देखो मैं तुम इससे ट्यूशन नहीं लेना चाहते, हम दूसरे को टीचर मिल गया है. I was like okay fine whatever, I don't care.
मैं ज़बरदस्ती तुम्हारे घर में घुसने नहीं वाली हूँ, अरे। एंड देन व्हेन आई डायल हिज नंबर फ्रॉम माय मॉम्स फोन, ही पिक्स इट अप बिकॉज़ ही डजंट नो इट्स मी। सो ही गोज़ हेलो, एंड आई एम लाइक अंकल इट्स मी संहिता, जिसके साथ आपने बातें करे थे कि ट्यूशन्स पढ़ाना है, तो यू ऑल्सो सेड कि लास्ट दिन आप कॉल करोगे, आप भूल गए प्रॉब्ली, सो आई कॉल्ड यू। तो इज़ लाइक ओह हाँ हाँ हाँ, तो देखो बेटा एक प्रॉब्लम हो गया है, तुम ना अगले महीने की फर्स्ट तारीख से मत आओ, तुम ना 6-7 तारीख से आओ। At this point, I know that he's again bluffing, so I'm like, okay, fine, whatever. And then I cut the call. And his excuse was कि कोई तो है उनके relative, wife के family से, जो has died, so they are there in his wife's house. And all this time, I could see him lying because he was in his house. And now you have the question ki how did I know that he was in his house? So let me explain this one very simple thing to you. This is our house ka piche wala part, and this is their house ka piche wala part, and these two houses are literally beside each other. मैं मेरे रूम से, इस रूम से मैं लिटरली, आई कैन लिटरली सी द हाउस का पीछे वाला पार्ट, कि I don't want to show you guys, of course, but I can literally see the house का पीछे वाला part, and this is how I know that he was freaking lying. After listening to all this bullshit, I was like, मैं तो नहीं देने वाली इसको कोई ट्यूशन व्यूशन, भाड़ में जाइए. So and then I cut the call. The next week comes and I've completely forgotten about all these things. उस time ना मुझे एक wedding attend करने जाना था किसी और जगह, not in Kolkata, outside of Kolkata. So I was outside of Kolkata for like Friday, Saturday, Sunday, 3 days के लिए. And while I was going to that place with all the Barati and all, we were from the groom's side, okay. So we were going to like where the wedding was like getting organized. So we were in the car. I get a call from an unknown number. I pick up the call and shit. It was that uncle. And he goes like, बेटा तुम ना कल से पढ़ाने चले आओ. I like uncle, मैं नहीं हूँ कोलकाता, और I don't think I can like provide tuitions to your son anymore because already बहुत देर हो चुका है, syllabus ख़त्म नहीं होगा, तो I don't think I am the right person to choose at this point. And he goes, no, I've heard तुम बहुत अच्छी पढ़ाते हो, तुम ही पढ़ाओगे मेरे बेटे को, तुम कब आ रहे हो कोलकाता वापस, तुम ये बोलो. I'm like, I am returning on Sunday. We'll speak later. अब मैं नहीं हूँ कोलकाता में. I can't talk to you right now. And I hang up the call. Okay? So this was like the first part of this whole story. And now is the second part. जहाँ पे मैं कोलकाता वापस आ गई हूँ. I'm at my home. It was like that Sunday when I returned. And I again get this call from this uncle. I pick up the call. Me being a dumbass, I pick up the call and the uncle goes, बेटा प्लीज़ मेरे बेटे को पढ़ाओ, he needs a tutor right now, इंग्लिश टीचर कहीं पे भी मिल नहीं रहा, and I've heard so much good things about you, तुम बहुत अच्छी पढ़ाते हो, ये वो सो. and I'm like, wait. तो बहुत बहुत रिक्वेस्ट करे, and I was like, यार at the end of the day बड़े हैं मेरे से, हमारे सेम लोकेलिटी में रहते हैं, let me just accept it. And he also increased 50 rupees. Okay, he was like, I'm increasing 50 rupees, you stay. And I didn't stay for that 50 rupees. Okay, I stayed because with the name, मतलब एक घंटे, we were like, not एक घंटा of course, आधा घंटा 40 minutes तक वो लाइक रिक्वेस्ट ही कर रहे थे कि पढ़ा दो पढ़ा दो पढ़ा दो. लाइक नहीं पढ़ाऊंगी. आई वॉज ऑल्सो स्टबर्न, ओके, बट एट द एंड ही वाज लाइक, बूढ़ा अंकल बात मान जाओ, ये वो. सो आई वाज लाइक, नो व्हाट, फाइन, पढ़ा दूंगी. बट द डील वाज दैट अंकल क्लियरली टोल्ड कि लिटरेचर पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम सिर्फ ग्रामर पार्ट दिखा देना. आई एम लाइक, ओके फाइन, मैं सिर्फ ग्रामर दिखाऊंगी. एंड ही वाज लाइक, लिटरेचर के लिए ऑलरेडी एक पर्सन है, तो वो पढ़ाते हैं लिटरेचर, तुम ग्रामर पढ़ा दो सिर्फ, वही ही नीड्स द मोस्ट. आई एम लाइक, ओके फाइन. While I was on call with this uncle, I had specifically said this one thing, and that is, uncle, आपके बेटे को मैं पढ़ा दूंगी, no problem, but you have to make sure that you are paying me my fees within the first 7 months of every month. Okay, तो फर्स्ट वीक के अंदर मुझे फीस चाहिए, मैं एडवांस फीस लेती हूँ. And he was like, okay, fine, no problem, I'll pay your fees within the time that you want, so no problem. I was like, okay, fine, then all is finalized. The next week I start
you know, providing his son tuitions. So now it's my first day coaching का उनके घर. I go to their place, to their room. तो जो लड़के को मुझे ट्यूशन पढ़ाना था, he was sitting there and his dad is like praising his kid कि बहुत अच्छा है इंग्लिश में, बहुत अच्छा पढ़ लेता है, लिख लेता है. I'm like okay fine then, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है भाई. Then I start teaching him. And guess what? This ladka, like the son, knows nothing about English. इंग्लिश को ई भी नहीं आता उसको भाई. मतलब क्लास 1-2 के बच्चे उससे अच्छे इंग्लिश बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, समझ लेते हैं. मतलब ही डजंट नो अ मीनिंग ऑफ द सिंपलेस्ट इंग्लिश वर्ड्स. अप का मतलब नहीं पता, डाउन का मतलब नहीं पता, बिसाइड का मतलब नहीं पता. उसको मैं प्रिपोजिशन समझाऊँ या वर्ड्स के मीनिंग समझाऊँ भाई? प्रीपोजिशंस की जगह आर्टिकल्स लिख के चले आ रहा है, आर्टिकल्स की जगह भाई विथ लिख के चले आ रहा है. व्हाट द हेक? एट दिस पॉइंट माय माइंड इज कंप्लीटली मिस्ड अप. आई एम लाइक भाई इसको मैं कैसे पढ़ाऊँ? इसको बेसिक्स नहीं आता इंग्लिश के. ये क्लास 10 में कैसे उठ गया? मतलब आई वाज फ्लैबरगास्टेड एट दिस पॉइंट. आई एम पैनिकिंग दैट कैसे पढ़ाऊँ मैं इसको भाई. एंड हिज मॉम एंड डैड एवरी डे whenever I used to go to their place to provide tuitions, हर वक्त आके ये बोलता था लेटर राइटिंग सिखा दो, पैराग्राफ राइटिंग सिखा दो, ये सिखा दो, वो सिखा दो. आई एम लाइक इसको पैराग्राफ स्पेलिंग भी नहीं आता आंटी. मतलब क्या सिखाओ इसको पैराग्राफ में? लिखेगा क्या? इसको कुछ भी नहीं आता. एंड मैं इसको पढ़ा रही हूँ एंड द डे कम्स व्हेन इट वाज 7th. एंड अप्रैल तो चला गया था. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का 7th हो गया था एंड दे हैड स्टिल नॉट पेड मी माई फीस. 7th को मैं पढ़ा के आई वेंट टू देयर रूम जहाँ पे आंटी अंकल थे. एंड आई कुड सी आंटी एंड पास में ही आई कुड सी दैट अंकल टाइंग हिज लुंगी. ठीक है, तो वो कुछ ज़्यादा ही कॉर्नर में थे, मेरे सामने नहीं थे, बट फ्रॉम द साइड ऑफ माई आइज आई कुड सी दैट. और सामने ही आंटी बैठी थी. तो आई सेड कि आंटी आज तो 7th है, तो आई हैड ऑलरेडी सेड कि मैं एडवांस फीस लेती हूँ, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मुझे फ़ीस दे दो. ऑफलाइन तो आपने दी नहीं, तो ऑनलाइन ही दे देना, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. तो बोल के आई लीव द प्लेस एंड आई स्टार्टेड रिटर्निंग टू माई होम. While I was returning to my home, this uncle calls me and is like, बेटा तुमने फ़ीस के लिए पूछा? एक्चुअली आई वॉज नॉट एट माई होम, मेरी वाइफ ने मुझे बोला. आई एम लाइक अंकल, ऑब्वियसली आई कुडंट से दैट टू हिज फेस बिकॉज आई वॉज फकिंग dumbass. I was like, uncle, I could literally see you like adjusting a lungi, but okay, you're saying you weren't on home, so why would anyone else tie their lungi in front of your wife? I don't know. Again, not my cup of tea. सो ही गोज़, बेटा आपने फ़ीस के लिए मांगा तो आप एडवांस फ़ीस लेते हो, मुझे तो ये पता नहीं था. अरे पता नहीं था मतलब, तो अंकल मुझे नहीं समझ में आता बिकॉज आई हैड सेड दिस वेरी क्लियरली ऑन द वेरी फर्स्ट डे दैट आई प्रेफर टेकिंग एडवांस फीस. एंड आपने हाँ भी बोल दिया था. एंड इज़ लाइक नहीं नहीं मैं तो हाँ नहीं बोला था. आई एम लाइक अंकल आपने हाँ बोला था. यू नॉट द फर्स्ट पर्सन जिसको मैं ये बोल रही हूँ. मैं सब पेरेंट्स को यही बोलती हूँ कि आई टेक एडवांस फीस. तो ये नहीं हो सकता कि मैंने आपको नहीं बोला है. एट दिस पॉइंट माई ब्लड वॉज बॉइलिंग. आई वॉज लाइक अगर ये नहीं देता है तो मैं तो मतलब हल्ला मचा दूंगी इनके घर जाके नेक्स्ट दिन. आई एम लाइक यू नो वॉट अंकल, मुझे नेक्स्ट दिन फीस चाहिए, नहीं तो मैं नहीं पढ़ाऊँगी. एंड ही इज़ लाइक ठीक है तुम नेक्स्ट दिन आओ, मैं पक्का दे दूँगा. मुझे मुझे समझ में नहीं आया था. आई विल कीप दैट इन माइंड फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ. तो तुम अगले दिन आओ, मैं अगले दिन ही तुम्हें दे दूँगा. आई एम लाइक ओके फाइन व्हाटएवर. तो नेक्स्ट दिन मैं जाती हूँ, तो आई गो टू दैट प्लेस एंड ही गिव्स मी माई फीस एंड ही इज़ लाइक बेटा एक बात कहूँ, मैं भी तो जॉब करता हूँ ना, तो मुझे भी फीस मिलने में थोड़ा लेट हो जाता है. तो तुम एक काम करो, तुम 7 नहीं तुम 10 तक मुझे टाइम दो, मैं 1 से 10 तारीख के अंदर अगले महीने से तुम्हें फ़ीस दे दूँगा. तो तुम 10 कर दो, फिर 3 दिन ज़्यादा प्लीज़ मान जाओ. लाइक अरे यार कहाँ फंस गई लाइक ओके फाइन. एंड फिर आई टेक द फीस. आई अगेन स्टार्ट कंटिन्यूइंग माई ट्यूशंस विथ हिज सन. एंड वो सन एक नंबर का, क्या ही बोलूँ मैं, गाली भी नहीं दे सकती भाई. एक नंबर का मतलब निकम्मा निठल्ला इंसान था. ठीक है, उसको कुछ नहीं आता बट एटीट्यूड उसका सर पार. ठीक है, मतलब
एटीट्यूड देख के ना लगता है झापड़ मार दूँ उसको, बट ऑब्वियसली आई कुडंट। बट मैं ये एक काम करती थी, और वो है जो जो मुझे फ्रस्ट्रेट्स दूसरे बच्चे करते थे, मैं सब फ्रस्ट्रेशंस इस पे निकालता था। बिकॉज़ ये भाई ईज़ीएस्ट टारगेट था, इसको कुछ नहीं आता था, ये कुछ नहीं कर सकता था, ठीक है? एंड हिज़ मॉम वाज़ लाइक, भाई तुम इसके साथ जो मर्ज़ी करो, मुझे पता है ये बहुत बहुत गंदा है इंग्लिश में, तुम्हें मारना है, पीटना है, जो करना है करो, उसको सिर्फ़ पास करवा दो। तो आई हैड द ग्रीन कार्ड कि आई कैन डू एनीथिंग विद दिस गाय, ओके। सो मीन, बट भाई बहुत बहुत मतलब छीटियाल बोलते हैं बंगाली में, मतलब माथे में बहुत छीट भरा हुआ है उसका, ठीक है? तो वो वैसे टाइप का एक लड़का है, एंड ही डिजर्व्स दैट, ट्रस्ट मी गाइस, ओके। सो अगेन द नेक्स्ट मंथ कम्स, विच इज़ दिस मंथ एक्चुअली, अप्रैल मई जून, हाँ दिस मंथ का जून। सो यू वुड नाउ थिंक दैट 10 तो आज है, तो आई गो टू देयर हाउस ऑन मंडेज एंड वेंसडेज। तो मंडे था कल, कल वॉज 9th एंड टुडे इज 10th एंड वेडनेसडे इज 11th। तो मैं मंडे और वेंसडे जाती हूँ, 9 और 11th। 10th में मैं नहीं जाती, मतलब इस मंथ में नहीं जाऊँगी 10th में, बिकॉज इट्स ट्यूसडे, ठीक है? तो आई वॉज लाइक कि यार 10 तारीख तो आने वाला है, 9th को आई गेस दे देंगे, बिकॉज इतने दिनों से नहीं दिया था उन्होंने। तो आई कॉल देम येस्टरडे 9th को कि अंकल इट्स 9th टुडे एंड यू स्टिल हैवेंट गिवन योर फीस, तो मैं जब आज जाऊँगी तो आप प्लीज़ फीस अरेंज करके रखना। एंड ही इज़ लाइक, आज तो नहीं हो सकता, तुम नेक्स्ट वीक चले आओ, नेक्स्ट वीक दे दूँगा मैं। I'm like, uncle, you did this the last time as well. I'm not falling for this again. I need my fees today. And this uncle goes कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने 50 रुपीज़ बढ़ा के भी दिया है तुम्हें, फिर भी तुम ऐसे बात कर रही हो मुझसे। And at this point, I have literally lost my shit. I'm like, 50 rupees, it's not a freaking groundbreaking deal, uncle. And you had already said कि मैं सिर्फ ग्रामर पढ़ाऊँगी। ओह बाय द वे, आई डिड नॉट से यू दिस। मुझे बोला गया था कि मैं सिर्फ ग्रामर पढ़ाऊँगी, और मैं जब जाई वहाँ पे, आई हैड टू स्टार्ट यू नो प्रोवाइडिंग हिम लिटरेचर लेसन्स एज़ वेल। एंड इसको लिटरेचर लेसन्स देना मतलब समझ ही लो भाई, बिसाइड अब ये सब का वर्ड नहीं पता उसे। सो इन रियलिटी आई एम डूइंग मोर देन व्हाट आई वाज आस्क्ड फॉर, एंड देन आप मुझे ये सुना रहे हो कि 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देता हूँ मैं। 50 रुपीज़, पानी भी नहीं गर्म होता 50 रुपीज़ से, मतलब क्या ही बोल रहे हो आप अंकल। एंड एट दिस पॉइंट आई लॉस्ट माई शिट, आई डोंट केयर मेरे मुंह से क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है, ओके। मतलब दिस पर्सन हैज़ लिटरली इरिटेटेड मी सो मच, ओके। एंड आई एम लाइक, यू नो वॉट, मुझे चाहिए फ़ीस आज, नहीं तो मैं नहीं आने वाली पढ़ाने। एंड दिस अंकल इज़ लाइक, ऐसे कैसे बोल सकते हो, एक दिन का ही तो बात है, तुम अगले दिन ले लो ना, एक दिन का ही तो बात है। एंड आई एम लाइक, यू नो वॉट, इट्स नॉट अबाउट एक दिन का ही बात है, इट्स अबाउट कि आप, मैंने पहले से ही क्लियर करके रखा था कि मुझे इस दिन के पहले लेना है फीस, एंड आप वो नहीं सुन रहे, आप मेरे वो बात का रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे। दैट इज़ द पॉइंट। माई पॉइंट ये नहीं है कि एक दिन बाद आप दे दोगे, तो आप एक दिन पहले क्यों नहीं दे सकते, अब अगर आप एक दिन बाद दे सकते हो तो। एंड आई एम लिटरली हाफ येलिंग एट हिम एट दिस पॉइंट, एंड ही इज अंडरस्टूड दैट आई एम पिस्ड। एंड व्हेन ही अंडरस्टैंड्स दैट, ही वेरी कामली अपना फ़ोन अपनी वाइफ को देकर भाग जाता है, ठीक है? नाउ हिज वाइफ स्टार्ट स्पीकिंग विथ मी, दैट वाइफ जो पिछले साल उन अंकल से मार खा के was like half dead already, ठीक है? But anyways, I don't want to get into their personal relationship. Okay, so this woman goes कि तुम तो 2 घंटे उसको पढ़ाते भी नहीं बेटा, तुम क्या फीस मांग रहे हो, ये वो। आई एम लाइक, एक्सक्यूज मी आंटी, 2 घंटा नहीं पढ़ाती मतलब क्या? लाइक पॉइंट मी आउट वन डे जब मैंने नहीं पढ़ाई उसको। एंड शी पॉइंट्स आउट दिस डे कि तुम तो पहले दिन नहीं किए, तुम तो यू नो 1 घंटा 40 मिनट पढ़ा के चले गए, इन दिस एंड दैट। आई एम लाइक, आंटी मैं टेस्ट ले रही थी उसकी, एंड लेट मी एक्सप्लेन, ओके। मैं टेस्ट ले रही थी उसका, एंड दिस गाय लिटरली टेक्स like 40 to 50 minutes to solve one question, ठीक है? लिटरली आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, इतना स्लो है बंदा, इतना स्लो है। इसको 2 आंसर्स दिया था मैंने,
ये पूरा मतलब 1 घंटे से ज़्यादा ले गया, ठीक है? 1 घंटे से ज़्यादा उसको 2 आंसर्स करने मिल गए एंड बाकी बचा था 20-25 मिनट्स, ठीक है? तो वो 20-25 मिनट्स में उसको मैं क्या पढ़ाती? क्या पढ़ाती? लिटरेचर के सिलेबस आई कंप्लीटेड समहाउ, ठीक है? सिर्फ़ ग्रामर बचा था और ग्रामर में उसको 20 मिनट में कुछ समझा नहीं सकती, ठीक है? तो आई लेफ्ट हिम अर्ली इसलिए 1 दिन के लिए एंड दिस आंटी इज़ लाइक तुम तो कभी 2 घंटे नहीं पढ़ाती। आई एम लाइक कभी तो वर्ड यूज़ ना ही करें आप आंटी, मतलब यू आर पिसिंग मी एज़ वेल। And I finally say that, Auntie, you know what? I don't want to, argue with you or waste my time. मुझे नहीं आना आपके घर अगर आप फीस नहीं देते मुझे। इट्स क्रिस्टल क्लियर। आप फीस देते हो तो मैं कंटिन्यू करूँगी पढ़ाना, अगर आप नहीं देते तो मैं नहीं करूँगी कंटिन्यू। एंड शी इज़ लाइक ओके फाइन, प्लीज़ जस्ट कंटिन्यू मत करो, मैं दे दूँगी फीस आज ही। तो आई एम लाइक गुड एंड देन आई हैंग अप द कॉल। दैट इवनिंग मतलब येस्टरडे, कल मैं फिर गई उनके घर। कल ही मतलब झगड़ा हुआ था, कल ही गई इवनिंग टाइम को। आई वेंट टू देयर प्लेस, आई वेंट इनटू देयर रूम जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ। आई स्टार्टेड टीचिंग हिम। इट्स लिटरली अ 2 आवर का टॉर्चर फॉर मी बिकॉज़ इसको कुछ नहीं समझ में आता इंग्लिश, ठीक है? तो आई वाज़ लाइक टीचिंग हिम एंड हिज डैड एंटर्स विद द मनी एंड ही इज़ लाइक ये लो बच्चा फीस ले लो। एक्चुअली क्या है ना, छुट्टा नहीं था इसलिए मैं बोल रही थी कि तुम बाद में ले लो। अलग छुट्टा नहीं था इसलिए इतना कुछ, आप मुझे दे दो मैं छुट्टा दे दूंगी आपको। मतलब छुट्टे के लिए इतना कौन करता है? आप फिर से झूठ बोल रहे हो अंकल, मतलब बंद कर दो झूठ बोलना एट दिस पॉइंट। ऑफ कोर्स आई डिडंट से दैट एंड हिज फादर गोज अगेन कि इसको कुछ पैराग्राफ वैराग्राफ सिखा दो, मतलब कर सिखा दो यार। मुझे ना इतना पारा चढ़ गया मेरा। आई लिटरली से दिस, यू नो व्हाट, रूपम पैराग्राफ का स्पेलिंग बोल। रूपम मतलब उनका जो बेटा जिनको पढ़ाती हूँ। लाइक भाई तू पैराग्राफ का स्पेलिंग बोल दे अपने बाप के सामने एक बार। आई लिटरली सेड दिस, एक बाप ने बोला वो थोड़ा, तो आई वाज लाइक तोर बाबार सामने एक बार पैराग्राफ स्पेलिंगটা বলে দে ভাই in Bengali and he goes like হ্যাঁ like paragraph spelling বল and he's like PAGRFI। I'm like কি अंकल देख लो पैराग्राफ का स्पेलिंग PRAGFI, पैराग्राफ सिखाऊं मैं इसको। एंड हिज डैड इज लाइक हाँ एंड देन ही गोज अवे। अब लाइक हो गया पैराग्राफ, हैप्पी, चलो ठीक है। So yeah guys, this was my story time video of how this man continuously tries to scam me, hurt their ego so much कि उनको बाद में समझ में आ ही जाता है कि भाई इसके साथ क्या ही करें, दे देते हैं इसको भाई फीस। सो या मैं अभी भी पढ़ाती हूँ इसको। आई कंटिन्यू प्रोवाइडिंग हिम ट्यूशन्स एंड इसका पापा फिर से ये सब हरकतें करे तो मैं फिर से स्टोरी टाइम वीडियो बनाऊँगी, फिर से अपलोड करूँगी। भाई कुछ करे या ना करे कंटेंट तो दे रहा है, देने दो भाई। So yeah, that was it for today guys. I hope you liked my video, and if you liked my video please do not forget to like, share and subscribe to my channel because this means so much for me. And yeah, bye.